Hello friends, my name is Tarun and you're watching English with Tarun. Well, today in this video, we are going to learn a few one-word substitution. Yes, वो शब्द जो एक sentence को replace करें. So, let's get started. Well, the first word is monolingual. जिस व्यक्ति को एक भाषा बोलनी आती है. For example, मुझे केवल हिंदी बोलना आता है, तो I am monolingual. बायलिंगुअल जिसको दो भाषाएं बोलनी आती है. मुझे हिंदी और इंग्लिश दो भाषाएं बोलनी आती हैं, सो आई एम बायलिंगुअल. ही रिग्रेट्स बीइंग मोनोलिंगुअल एंड विशेस ही वर बायलिंगुअल. ओके, मुझे मान लीजिए एक भाषा बोलनी आती है और लगता है काश यार मैं बायलिंगुअल होता. आई विश आई वर बायलिंगुअल. नेक्स्ट, ट्राइलिंगुअल. अगर आपको तीन भाषाएं बोलनी आती हैं तो आप हो गए ट्राइलिंगुअल. ध्यान दें, इसमें जो लिंगुअल वर्ड है वो सब में सेम है, सिर्फ जो प्रीफिक्स है वो चेंज हो रहा है. मुझे हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच तीन भाषाएं बोलनी आती है, तो आई एम ट्राइलिंगुअल. मल्टीलिंगुअल, समबडी हु नोज मोर देन 2 लैंग्वेजेस. नाउ दो से अधिक मतलब 3, 4, 5, 6. अगर दो से अधिक भाषाएं बोलनी आती हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड मल्टीलिंगुअल. आई कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड फ्रेंच, सो आई एम मल्टीलिंगुअल. पॉलीग्लॉट. वेल, पॉलीग्लॉट और मल्टीलिंगुअल एक ही बात है. मल्टीलिंगुअल एडजेक्टिव था, तो आई एम मल्टीलिंगुअल, उसमें ए नहीं आएगा. पॉलीग्लॉट एक नाउन है, तो हम इसमें ए का प्रयोग करेंगे. मुझे 5 भाषाएं आती हैं, तो मैं हो गया पॉलीग्लॉट. आई एम अ पॉलीग्लॉट. आर यू अ पॉलीग्लॉट? हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? अच्छा, पॉलीग्लॉट होने के क्या बेनिफिट्स हैं? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ पॉलीग्लॉट? सपोज आपको 3, 4, 5 लैंग्वेजेस आती हैं and you go for an interview and there are some other candidates and you all have the same degree, but बाकी जो लोग हैं they are either monolingual or bilingual, but you are multilingual or you are a polyglot. So do you think you will have an edge over them? आपको उसका फ़ायदा मिलेगा. You will get the preference, you will get आपके जो possibilities हैं सेलेक्ट होने की ज़्यादा है. You can just think over it and discuss with somebody. Next, monogamous. One marriage system. अगर आप एक शादी करते हैं, then that person is called monogamous. मोनो माने एक, गमस में गैमी वर्ड है जो कि मैरिज को डिनोट करता है. So involving marriage to one person at a time. He is in a committed monogamous relationship. मतलब he is married to only one person. Under Hindu law, all marriages must be monogamous. तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जितनी भी शादियां हैं, they should be monogamous. मतलब you are allowed to marry only one person at one time. Bigamous. Bigamous माने when you are married to one person and then you get married to another person. दो शादियाँ. So married to someone while already legally married to someone else. She denied that her marriage was bigamous. She was killed by her bigamous husband. That means उसका जो husband था उसकी 2 wife थी and he killed her. In some religion or in some countries, men are allowed to be bigamous. मतलब दो शादी करना अलाउड है. You need the consent of the first wife. अगर first wife consent दे, then you can get married to the second one while you are legally married to the first one. So then you are bigamous. Philanthropist. Noun है. A lover of mankind, a person who helps the poor. जो हेल्प करे
गरीबों की, परोपकारी, और जो मैनकाइंड को प्यार करे, लव करे. Somebody who does a lot of social work, जो बहुत social work करे. For example, talk about Ratan Tata. He spends the major part of his income on social work. वो अपनी income का जो एक major part है वो social work पे खर्च करते हैं. So he is a philanthropist. Philanthropist का ही synonym है altruist. Altruist माने भी lover of mankind. So he is an altruist, he is a philanthropist. Are you a philanthropist? Do you do social work? I want to be a philanthropist. I want to be an altruist. Just take care. Philanthropist से पहले A आएगा और altruist से पहले N आएगा. Philanthropist consonant, altruist vowel sound. ऐसे बहुत सारे अमीर लोग हैं, business tycoons, filthy rich. They have abundance of money, but they don't spend money on social work. They don't do any social work. So they are not philanthropists. But I think if you are rich, if you have money, you must do some social work. You must be a philanthropist. Misogynist. इसको वर्ड को ब्रेक करते हैं. गायनी का मतलब होता है वुमन. तभी जो महिलाओं की डॉक्टर होती हैं उन्हें बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट. शॉर्ट में बोलते हैं गायनिक. मिसन का अर्थ होता है हेट करना, रूट वर्ड है. नाउ मिसोजिनिस्ट मीन्स एक वो व्यक्ति जो महिलाओं को डिसलाइक करे, उनको हेट करे, उनको लुक डाउन करे. A person who hates, dislikes, mistrusts or mistreats women is called misogynist. Yes, in our society you can find some people like this who look down upon women. उनको लगता है कि वो superior हैं, women inferior हैं. They don't respect women, they don't like women, they hate women, they dislike women. So they are misogynist. I think that's really a bad idea. One should not be a misogynist. We must respect women. We must be chivalrous. Chivalrous माने वो व्यक्ति जो महिलाओं का रिस्पेक्ट करे, उनका आदर करे. That person is called chivalrous. Next, bigot. Bigot माने कट्टर. कट्टर means जो व्यक्ति दूसरे रिलीजन, कास्ट या क्रीड के प्रति टॉलरेंट ना हो, इनटॉलरेंट हो, जो अपने ही एक स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल ओपिनियन रखता हो और दूसरों से उसे समस्या है. फनेटिक बोल सकते हैं. समबडी हु इज़ वेरी नैरो माइंडेड, जो समय के साथ बदल नहीं रहा है, जो बड़ा अनरीजनेबल है. इट्स नॉट गुड टू बी अ बिगट. But yes, unfortunately in India we have a lot of people, they are very unreasonable, they are bigots, they are fanatics, they are very narrow-minded. Okay, next. Turncoat. Turncoat माने दल बदलू. Disloyal or deceitful because they have left their party, religion or organization and joined an opposing one. जो अपनी पार्टी, अपना संघ, अपना रिलीजन छोड़ के दूसरा ज्वाइन कर ले, उसे बोलते हैं टर्न कोट. इसी का एक सिनोनिम है डिफेक्टर. डिफेक्टर का मतलब भी होता है टर्न कोट. अभी राजस्थान में सचिन पायलट ने कांग्रेस को छोड़ा और ज्वाइन कर लिया बीजेपी को, और उनके साथ में कुछ और एमएलएस थे जिन्होंने आके ज्वाइन कर लिया. तो कांग्रेस ने सचिन पायलट को कहा डिफेक्टर. उन्होंने डिफेक्ट किया, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया. देयर आर टू मोर वर्ड्स, ट्रेटर एंड बिट्रेयर. ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार. बिट्रेयर का मतलब भी होता है गद्दार. बिट्रे वर्ब है. बिट्रे माने गद्दारी करना. फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति रहता है इंडिया में और अगर वो पाकिस्तान या चाइना से पैसे लेकर यहाँ के सीक्रेट्स उनको लीक करे तो वो इंडिया को बिट्रे कर रहा है. That person is betraying the country, and that person is called betrayer or a traitor.
विभीषण ने और रावण को छोड़कर ज्वाइन किया राम को और बताया कि उसको नेवल में हिट करने से ही विल डाई। डिफेक्ट किया, अपना भाई को छोड़कर इधर आया, डिफेक्टर। गद्दारी भी की, बताया भी कैसे मारना है, तो ट्रेटर भी थे। तो दैट्स वाई ही इज़ कॉल्ड अ ट्रेटर। एक सेंटेंस है, ट्रेटर्स आर द वर्स्ट एनिमीज़। जो गद्दार होते हैं वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, सबसे मतलब वर्स्ट एनिमीज़ होते हैं। जो दुश्मन सामने है उससे फाइट करना आसान है, बिकॉज यू नो ही इज़ योर एनिमी। बट ट्रेटर्स आर द एनिमीज़, यू डोंट नो दैट दे आर योर एनिमीज़। They pretend to be your friend, they pretend to be your well-wisher, but they backstab. वो backstabbing करते हैं। बहुत कॉमन था पहले जब युद्ध हुआ करते थे, तो अटैक कर दिया एनिमी ने। अब आपके ही महल में गद्दार है जो उनको हेल्प करेगा, उनको वो गेट खोल देगा, उनको एंट्री दे देगा, वो उनको युद्ध जिताने में हेल्प करेगा। तो दैट पर्सन इज़ अ ट्रेटर or a betrayer. All right, next. Plagiarist. Plagiarist माने फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बुक लिखी और उस बुक में जो विचार हैं वो मेरे अपने ओरिजिनल नहीं हैं। मैंने 3-4 बुक में से कॉपी किया, उसमें पेस्ट कर दिया। तो मैंने साहित्य या लेखन की चोरी की, तो मैं हो गया प्लेजरिस्ट। आई एम अ प्लेजरिस्ट। वर्ब बनेगा प्लेजराइज। मैंने प्लेजराइज किया मतलब साहित्य की चोरी की। उसका नाउन बनता है प्लेजरिज्म। ही इज़ अ प्लेजरिस्ट। द पेपर अनमास्क्ड वन ऑफ इट्स रिपोर्टर्स एज अ सीरियल प्लेजरिस्ट एंड फ्रॉड। इनफैलिबल। इनफैलिबल मीन्स नेवर रॉन्ग, फेलिंग और मेकिंग अ मिस्टेक। अचूक बोल सकते हैं हिंदी में। इवन द एक्सपर्ट्स आर नॉट इनफैलिबल। किसी भी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी गलती करते हैं। एक कहावत है, टू err इज़ ह्यूमन। गलती करना आदमी का काम है। सो वी ऑल मेक मिस्टेक्स। तो अगर हम सब लोग गलती करते हैं तो वी आर नॉट इनफैलिबल। नोबडी इज़ इनफैलिबल। दैट मीन्स वी ऑल मेक मिस्टेक्स। COVID-19 टेस्ट आर नॉट इनफैलिबल। अगर किसी व्यक्ति का टेस्ट हुआ कोविड का और वो पॉजिटिव आया, हो सकता है कि उसी टेस्ट को किसी और लैब में कराया जाए तो नेगेटिव आए। इसका मतलब जो वो टेस्ट का रिपोर्ट जो आ रहा है वो इनफॉलिबल नहीं है। दैट्स नॉट इनफैलिबल। मिस्टेक्स हैं उसमें, मतलब संभावना है कि वो उसमें मिस्टेक्स हों। तो समथिंग विच इज़ नेवर रॉन्ग इज़ इनफैलिबल। इनफैलिबल रेमेडी बोल सकते हैं, अचूक इलाज। देयर इज़ नो इनफैलिबल रेमेडी फॉर कैंसर। मतलब कैंसर का कोई श्योर शॉट, कोई परमानेंट इलाज नहीं है। देयर इज़ नो श्योर शॉट रेमेडी फॉर कैंसर, और आई कैन से देयर इज़ नो infallible remedy for cancer. Well, I hope you understood all the words we learned in this lesson. Thanks for watching the video, and don't forget to like and subscribe to the channel. See you again with some new lesson. Thank you. Have a good time.